Hi dear student, welcome at APS online classes. I think you are doing well. So I am having your GK class 7th GK. Today I am going to explain chapter first. Title is This is my India. Okay, we know our country name is India, Bharat. Okay, so it's very interesting, some amazing facts in this chapter you are observing here. So read these amazing facts about India and feel proud. Okay, you know that the Indian culture and traditions are ancient. Okay, the Indian culture and traditions are coming for long time. Okay, so we are adopting, but in some modern cases, we are following Western culture, not our Indian culture. So we should opt and follow the Indian culture, because of Indian culture and traditions are very ancient, dating back several thousands of years. Until today, the civilization lives on, which makes it one of the oldest still continuous civilization in the world. Okay, तो जो ओल्ड ट्रेडिशन है, कल्चर है, वही अभी इसको क्या रखा है, जीवित रखा है इस वर्ल्ड में। अपना इंडिया ही है जो पुराने कल्चर ट्रेडिशन को अभी ऑप्ट किए हुए है, ठीक है। बट सम केसेस में अभी इंडिया क्या कर रहा है, इसको अपना ओल्ड कल्चर भूलता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। ओके, सो हमें ऐसा नहीं करना है। वी शुड ऑप्ट आर ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। ओके, सेकेंड वन इज हियर व्हाट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ इन्वेंशन। देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन invention and discoveries. Invention means just new thing. Okay, discoveries means uh, we have we have uh, found those things which are already exist in the world, are already exist surrounding us. So invention means just new things. Okay, so India is a land of inventions. Some of the most notable inventions are the zero, button, cotton cultivation, chess, shampoo, Ayurvedic medicine, yoga, ruler, radio, wireless communication, binary code and fiber optics. ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ इन्वेंशन। ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ इन्वेंशन। सम इन्वेंशन आर मेंशनड हियर। जैसे अभी आपसे पूछा जाएगा कि ज़ीरो इज़ इन्वेंटेड इन विच कंट्री, तो क्या बताओगे आप, इंडिया। बटन, कॉटन कल्टीवेशन का भी इन्वेंशन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ है। ओके स्टूडेंट, कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। ओके, चलो, कॉटन कल्टीवेशन हो गया, ये हो गया, चेस हो गया, शैम्पू हो गया जो आप बाथिंग करते टाइम यूज करते हो बालों में, शैम्पू हो गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, ठीक है, मेडिसिन जैसे आयुर्वेदिक होता है, एलोपैथिक होता है, ठीक है, होम्योपैथिक होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी कहाँ इन्वेंशन हुआ है, अपने इंडिया में हुआ। ओके स्टूडेंट, योगा सभी लोग जानते ही हो। 21 कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को करते हैं ना योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एट 21 जून। ओके, रूलर क्या होता है, जैसे आप मेजर करते हो ना, स्केल, रूलर। ओके, रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया। ओके, और क्या होता है, बाइनरी कोड। ओके, बाइनरी
binary code and fiber optics. So these things are very useful for us, which are invented in India. ओके योगा तो आप जान ही रहे हो, योगा के बारे में बता चुके हैं आप। बाबा रामदेव योग गुरु को आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। चलो, योगा हैज़ बीन practiced for more than 5000 years. One important thing is here, what? Yoga has been practiced for more than 5000 years, and in the recent decades the global interest in this form of healing and activity has massively increased around the world. 5000 पहले से योगा हो रहा है, बट इस टाइम काफ़ी नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड सब योगा सेलिब्रेशन हो रहा है, योगा डे सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग योगा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे डिजीज़ और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या लोग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, योगा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट योगा, ठीक है। योगा को आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक रूम में बैठ के कर सकते हो, छत पे कर सकते हो। सो वी ऑल शुड डू yoga every day in the morning. Okay, it will help us to keep healthy. Okay, another important thing is here, what? There are at least 454 actively spoken language. There are at least 454 actively spoken language and 22 official language spoken in India. Okay, one important thing is here that India is a home to the second largest English speaking population in the world. Means इंडिया में क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग सेकंड नंबर क्या है, नंबर ऑफ पीपल who speak in English is at the second position, at the second place in the world, ठीक है। इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, इस इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोगों की संख्या सेकेंड पोजीशन पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। मोर देन 70% स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड कम फ्रॉम इंडिया। जो भी आप मसाले यूज करते हो वो कहाँ से आता है, मैक्सिमम मसाले कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। 70% स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड कम फ्रॉम इंडिया। ओके, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। केरल को क्या बोलते हैं, मसालों का बगीचा बोलते हैं, गार्डन ऑफ स्पाइसेस। ओके, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट इंडियन हाउसहोल्ड्स होल्ड 11% ऑफ द वर्ल्ड 11% ऑफ द वर्ल्ड 11% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल गोल्ड, ठीक है। जितने भी वर्ल्ड का 11% क्या है, वर्ल्ड्स के जो टोटल गोल्ड है उसका 11% हमारे कंट्री में यूज होता है, रखा है। ओके, इंडिया हैज़ मोर पीपल यूजिंग द इंटरनेट देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूएस। ओके, इंडिया हैज़ मोर पीपल यूजिंग द इंटरनेट देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूएस। जो यूएस की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा ही लोग हमारे कंट्री में क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये भी तो अमेजिंग फैक्ट हुआ ना बेटा। ओके, हमारे कंट्री में क्या है, जितने यूएस की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इंटरनेट यूज करते हैं। ओके, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे, ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे कहाँ जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। इस पैराग्राफ से पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ कॉटन कल्टीवेशन इज इन्वेंटेड, वेयर इज़ कॉटन कल्टीवेशन इन्वेंटेड, चेस कहाँ पे हुआ, ठीक है, योगा कहाँ हुआ, रूरल रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन बाइनरी कोड एंड फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ पे इन्वेंट किए गए। ओके स्टूडेंट, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट परसेंट ऑफ स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड कम फ्रॉम इंडिया, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड कम फ्रॉम इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया,
ओके। सो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। ये सब आपको लर्न करना है, पढ़ते रहना, देखते रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज हियर चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 में फर्स्ट इंडियन वुमन टू what Indian women have been pioneer in various field. Identify these Indian women's achievers using the given clues. ओके, यहाँ पे कुछ क्लू दिया गया है जिसके हेल्प से आपको उस इंडियन वुमेन का नाम बताना है, नेमिंग करनी है। ओके चलो, फर्स्ट वन इज हियर व्हाट? फर्स्ट वन इज हियर द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। कौन है बेटा? मैक्सिमम लोग जानते होंगे आप। चलो मैं बता दे रहा हूँ कौन होगा इसमें। विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पे आंसर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ओके चलो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित क्या है, क्या थी बताओ? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो क्या नाम है? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो क्या आप बताओगे? विजय लक्ष्मी पंडित। ओके चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज हियर कुछ सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है आपका, सेकेंड पॉइंट ये दिया है ना, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन बुकर प्राइज। ओके कौन है? ओके स्टूडेंट, सेकेंड वन इज हियर फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन बुकर प्राइज। चलो इसका क्या होगा? ऐसी कौन सी फर्स्ट लेडी थी जिनको क्या मिला? बुकर प्राइज मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन बुकर प्राइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलो बताओ कौन होगा? अरुंधति रॉय। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में नेम भी इनका दिया हुआ है, क्या नाम होगा इनका? अरुंधति रॉय। ओके अरुंधति रॉय। ओके चलो इनके बारे में भी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। किस बुक के लिए मिला था, किस नोबेल के लिए इनको मिला था बुकर प्राइज? बुकर प्राइज इज गिवन टू अ नोबेल राइटर, नोबलिस्ट को मिलता है। ओके सो अरुंधति रॉय का बर्थ कब हुआ था बेटा? 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ था। इज़ एन इंडियन ऑथर बेस्ट नोन फॉर हर नोबेल। ओके ये बुकर प्राइज इनको मिला था, एक नोबेल इन्होंने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ओके इनके नोबेल का क्या नाम है? अरुंधति राय को किस नोबेल के लिए मिला था बुकर प्राइज? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके 1997 में इन्होंने लिखा था इसको। विच ओन द मैन बुकर प्राइज फॉर fiction in 1997 and become the best selling book by a non expatriate Indian author। okay नोटेबल वर्क इनका क्या था? द मैन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके चलो कब मिला था इनको बेटा मैन बुकर प्राइज? 1997 में मिला था। ओके 1997 में मिला था। ओके अरुंधति रॉय को कब मिला था बुकर प्राइज? 1997 में मिला था। ओके स्टूडेंट गुड।
नेक्स्ट वन इज हियर फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर कौन है बताओ? फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर इज मिस सीबी मुथम्मा। कौन है? मिस सीबी मुथम्मा। ओके, ये रही। ठीक है, ठीक है बेटा, इनका पिक सभी लोग देख रहे होंगे। ये रही मैम, फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर कौन है? मिस सीबी मुथम्मा। ओके, फोर्थ देखो सभी लोग, फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल। फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल कौन था बताओ? पद्मावती बंदोपाध्याय, ये नेम है। कौन रहा बेटा? पद्मावती बंदोपाध्याय। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर फिफ्थ सभी लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट वीमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो फातिमा बीबी थी, ये सभी लोगों को पता होगा। ये है फातिमा बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये रही मैम फातिमा बीबी। इनको क्या बनाया गया था? फर्स्ट वीमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वीमेन जज थी ये। ओके, वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब देखो फर्स्ट वीमेन लेफ्टिनेंट जनरल। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? चलो बताओ, कौन रहा है? पुनीत अरोरा। पुनीत अरोरा मैम थी क्या? फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल ये मैम थी, पुनीत अरोरा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनीत अरोरा। ओके, पुनीत अरोरा, तो इसको आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक। आप सभी लोग जानते होंगे, कौन है बताओ? नहीं बता पा रहे हो सभी लोग? कौन है बेटा? ये है मैम, ये कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। 7th में क्या हो जाएगा? प्रेमलता अग्रवाल। फर्स्ट इंडियन वुमन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पिक्स, क्या हो जाएगा? प्रेमलता अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करोगे इसको? ये क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते होंगे, कौन है? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसको बनाया गया था? सरोजनी नायडू को बनाया गया था। ओके, चलो सरोजनी नायडू के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। और इन्होंने क्या किया था सरोजनी नायडू ने? सरोजनी नायडू। ओके, चलो नेक्स्ट, इस चैप्टर में तो बस केवल इतना ही था। इसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि कहीं आप लोग भूल ना जाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो सरोजनी नायडू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे बेटा। सरोजनी नायडू का एटलीस्ट बर्थ ईयर जानना ज़रूरी है। इनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और इनका डेथ 2 मार्च 1949। ओके, शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। ओके, अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेन emancipation and anti-imperialistic ideas. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. Okay, she was born. Okay, एक इनका नाम एक और है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको कौन बोला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को बोला था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है,
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इनको क्या बोला था? सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को बोला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके। बॉर्न इन ए बंगाली फैमिली इन हैदराबाद, नायडू वॉज एजुकेटेड इन चेन्नई, लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फॉलोइंग हर टाइम इन इंग्लैंड where she worked as a suffragist, she was drawn to Indian National Congress movement for India's independence from British rule. She became a part of the Indian nationalist movement and became a follower of Mahatma Gandhi and his idea of Swaraj. Okay, she was appointed the president of Indian National Congress in 1925 and later became the governor of United Province in 1947. यूनाइटेड प्रोविंस समझ रहे हो ये क्या है? ये अपने स्टेट यूपी के स्टेट का नाम था पहले, यूनाइटेड प्रोविंस। इन 1947 became the first woman to hold the office of the governor in the domination of India. ओके, चलो इनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी बता देते हैं आपको, मैरिज और एजुकेशन। चलो मैरिज, ठीक है। सरोजनी मैम ने क्या हुआ था? सरोजनी मेट पैडीपैती गोविंदराजुलू नायडू, a physician at the age of 19. After finishing her studies, she married him. At that time, intercaste marriages were not as common as they are today, but both their families approved their marriage. Okay. As Sarojini was from Bengal, while Padipati Naidu was from Andhra Pradesh. This was an inter-regional marriage of East and South India with two different cultures. The couple had 5 children. Their daughter Padipati Padmaja also joined the independence movement and was part of the Quit India movement. She was appointed the governor of the state of Uttar Pradesh soon after Indian independence. ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम लोगों ने क्या किया? ये पढ़ा फर्स्ट इंडियन वीमेन। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल कौन है बताओ? सभी लोग बताओ। विजय लक्ष्मी पंडित, अभी हमने बताया आपको। ओके, सेकंड वन इज हियर, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन बुकर प्राइज, ये कौन है? ये भी बता लोगे आप बेटा, कौन है ये? नहीं बता रहे हो, बता पा रहे हो, चलो बताओ। अरुंधति रॉय। ओके, फर्स्ट वुमन एम्बेसडर मिस सीबी मुथम्मा, यहाँ पे बताया था ना, ये कौन हो जाएगा? मिस सीबी मुथम्मा। फर्स्ट वुमन एयर वाइस मार्शल कौन होगा बताओ? पुनीत अरोड़ा नहीं होगा, कौन होगा बताओ? ये हो जाएगा पद्मावती बंदोपाध्याय। क्या हो जाएगा? पद्मावती बंदोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल क्या हो जाएगा? पद्मावती बंदोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी। ओके, सिक्स फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल कौन हो जाएगा? पुनीत अरोड़ा। ओके, पुनीत अरोड़ा। ओके, सेवन फर्स्ट इंडियन वुमन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक्स, प्रेमलता अग्रवाल। ओके, फर्स्ट वीमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू। फर्स्ट वीमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसको बनाया गया था? सरोजनी
नायडू को बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जीके क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑनवर्ड। थैंक यू स्टूडेंट, जितना भी पढ़ा दिया गया है बेटा आप उतना रेगुलर पढ़ते रहो, रिवाइज करो, ठीक है। और इन सभी लोगों के बारे में जो भी हम लोग इन फर्स्ट इंडियन वीमेन के बारे में बताया, इनके भी बारे में आप पढ़ो, ठीक है। हमने तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, बाकी आप नेट से या बुक से सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।